ओके सर, हम लोग बहुत सारे लोग ऑलरेडी जो 100 पे भी क्वालिफाई कर चुके हैं और हमारे साथ सब ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, और शायद और 2-3 मिनट और ज्यादा लोग जुड़ने भी वाले हैं सर। नाउ द स्टेज इज योर्स एंड एवरीवन इज रेडी विद देयर पेन एंड डायरी टू टेक योर एजुकेशन। Okay, fine, fantastic. So first of all, very good morning to all of you, and it's a great pleasure once again to be with you guys and to share some time with all of you and spending some quality time with you. It gives me a real pleasure, and I'm very blessed today. So I'll be sharing some of my experiences with all of you. So let's shall I begin? यस सर, यस सर। Oh, thank you so much. Okay, first of all, I mean, all of you guys who are now right now logging to me or listening to me eagerly, patiently, what do you want? I know all of you guys want to become successful. All of you want success, right? Now, the success term, it may be meaning different to different individuals. For some of you who have just joined, might be earning a paycheck of 20,000 rupees might be a success for them. For some of you might be earning a network of earning a paycheck of 50,000 rupees or 1 lakh rupees might be a success for you. For some of you, you mean buying that car might be a success, a definition of success for you. And for some of you, buying that house or doing this or doing that or that paycheck. So success definitely means different things to different people. But one thing is for sure, if you talk about success, अगर आप सक्सेस के बारे में बात करते हैं तो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। ये एक प्रोसेस है। दिस इज अ प्रोसेस। जैसे आप देखिए, एक बच्चा जब गर्भ में आता है, उसके बाद उसको 9 महीने का समय लगता है, प्लस माइनस 10-15 डेज, एंड उसके बाद वो बच्चे का जन्म होता है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि मैं इसको 9 दिन में कैसे निकाल लूं या ये 1 महीने में संभव हो जाए, वो संभव नहीं है। Why? Because it's a process. Same way, success भी एक process है. Now, let me take you through what this process is, how it works. First of all, you need to be relaxed, you need to be calm, right? You should be very excited about achieving what you want to achieve. आप बहुत excited होने चाहिए वो चीज अचीव करने के लिए जो आप अचीव करना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी रिलैक्स एंड काम, एंड फॉर उसके लिए मैं सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा, जो लोग मेरे को फॉलो करते आए हैं, जयदीप, सयंतन, राम, अलोय एंड अद पापुन एंड अदर लीडर्स, राइट, ऑल ऑफ यू दे ऑलरेडी नो, बट जो बहुत से नए लोग होंगे जो शायद मुझे पहली बार सुन रहे होंगे, सो व्हाट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड बी रिलैक्स एंड बी काम, एंड इसके लिए आई रिकमेंड एट लीस्ट 20 to 30 minutes you should relax yourself, you should calm yourself, एंड इसमें आपको मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा। मेडिटेशन के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट फॉर सिंपल न्यू बिगिनर्स व्हाट यू नीड टू डू इज सिंपली either you can go onto the YouTube, listen to some, you can listen to some guided meditation. I have also my lot of guided meditations जो कि आपके टीम लीडर्स के पास में आप इनसे ले सकते हैं। else simple, I mean instrumental music के ऊपर उसको कान में लगा के meditative music, it could be the water flowing through the Ganges or some instrument playing, slow instrument, and just close your eyes and simply focus on your breath. Simply अपने breath के ऊपर focus करिए and try to breathe as deep as possible. Long inhalation followed by long exhalation. ये मैं बिल्कुल beginners के लिए बता रहा हूँ। And उस समय में just continue to say relax. You can say relax and just अपने अपने mind को instruction दीजिए कि कोई भी विचार मुझे डिस्टर्ब, कोई भी विचार आए तो उसको बोलिए अभी जाइए, मैं बिजी हूँ। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, जस्ट फोकसिंग ऑन योर ब्रीदिंग और द वे यू ब्रीद स्टार्ट चेंजिंग एवरीथिंग। वो आपको रिलैक्स करना शुरू करेगा, काम करना शुरू करेगा। और जितने लोग जो ऑलरेडी इसको फॉलो करते हैं, द लीडर्स, राइट, इंक्लूडिंग जयदीप, यू, सयंतन, राम, अलोय एंड ऑल अदर पीपल, right,
you can do one simple technique is start focusing on your left nostril, left nostril के through breathe करिए, and then focus on the third eye. And when you focus on the third eye, see this is the month of October, ये अक्टूबर का महीना है. आज हम लोग 9 तारीख में बैठे हैं. 17 तारीख से there will be the Navratri or the 9 nights, that is the night of the goddess. So if you start breathing this way, you start activating the goddess energy in you. So you should do that, right? And it will totally transform you. It will totally start, I mean, ये आपको बहुत bliss और peace of mind देना शुरू करेगा. So सक्सेस का जो प्रोसेस नंबर 1 है, you should be relaxed, you should be calm. उसके बाद सेकंड चीज आती है डिसाइड व्हाट यू वांट. आपने ये निर्णय लेना है आपको चाहिए क्या. व्हाट डू यू वांट, आई मीन आपको क्या चाहिए. आप किस इनकम पर फोकस कर रहे हो, आप किस चीज पर टारगेट कर रहे हो. फॉर सम ऑफ यू योर गोल माइट बी टू अर्न 50,000 rupees. फॉर सम ऑफ यू 1 lakh rupees. So different people will be having different goals, but whatever it is, you need to decide what will be my first big milestone इस business के अंदर में. आपने उसको decide करना है. And उसके बाद you need to believe in it. Now how do you believe in it? आप उसके ऊपर विश्वास कैसे करोगे? Again and again उसके बारे में आपको सोचना है, अपने माइंड को प्रोग्राम करना है, तैयार करना है उस चीज को प्राप्त करने के लिए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, which is the income, like as I said, perhaps an income of 1 lakh rupees or say 2 lakh rupees, whatever you're focusing on, right? Continuously आपने उसका जो एक स्क्रीनशॉट बनाइए अपने फोन पे. Suppose somebody is targeting an income of 1 lakh rupees. 100 रुपए के नोट को आप उसमें 3 जीरो और लगाकर 1 लाख की रकम आप बना सकते हैं, राइट? और उसको फिर फोटोग्राफ खींच करके अपने स्क्रीनशॉट पे लगाइए. ऐसा आप बैक ऑफ द, आजकल जब बहुत से लोगों के मोबाइल में कवर होते हैं ट्रांसपेरेंट कवर, सो बैक साइड में उसको लगाइए. सो अगेन एंड अगेन आपके माइंड को वो देखना चाहिए. योर गोल शुड नेवर बी आउट ऑफ साइट, योर गोल शुड ऑलवेज बी इन योर साइट. जैसे एक कहावत है कि गोल्स आर नेवर आउट ऑफ रीच. When they go out of sight, they automatically become out of reach. गोल कभी भी हमारी पहुंच से दूर नहीं होते, वो हमारी दृष्टि से दूर हो जाते हैं. और जब वो हमारी दृष्टि से दूर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमारी पहुंच से दूर हो जाते हैं. यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, रियल लाइफ एग्जांपल. वंस अपॉन अ टाइम, एक बार पुराने समय की बात है, एक लेडी थी जो कि स्विमर थी. और उन्होंने अपना लक्ष्य रखा कि वो पहली लेडी महिला स्विमर बनना चाहती थी जो कि फ्रांस से इंग्लैंड तक तैर कर जाना चाहती थी. और वो जो सी है उसको इंग्लिश चैनल कहते हैं. तो उन्होंने उसके लिए बहुत तैयारी करी कि वो फ्रांस से शुरू करे, इंग्लैंड तक पहुंचे, तैर करके समुद्र में जाए. उन्होंने उनके जो कोच थे उनके साथ बहुत परिश्रम किया. 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम को, इंक्लूडिंग योगा, मेडिटेशन, फिजिकल लेबर, एवरीथिंग उन्होंने पूरा तैयारी किया. जब उनकी डेट आई उस काम को करने की, तो उन्होंने तैरना शुरू किया. बगल में उनके कोच थे बोट में, कोच के साथ में डॉक्टर्स थे, अ टीम ऑफ डॉक्टर्स वाज देयर, उनको हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, इमरजेंसी के लिए, एवरीथिंग वाज सेट. सो उन्होंने तैरना शुरू किया. तैरते हुए उन्हें 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, 5 घंटे हुए, 10 घंटे हुए, 12 घंटे हुए, 15 घंटे हुए. लगभग 16-17 घंटे की स्विमिंग के बाद में वो थकने लगी, वो गिव अप करने के लिए बोलने लगी. जब भी वो बाहर देखती, मौसम में बहुत ठंड थी और धुंध थी, फॉग था, तो उनको धरती नजर नहीं आ रही थी या उनको वो शोर नहीं दिख रहा था, किनारा नहीं दिख रहा था. तो वो कहने लगी अपने कोच को कि अब मैं बहुत थक गई हूँ, मैं गिव अप, मुझे बाहर निकाल लो, नहीं हो रहा. उनके कोच ने, जैसा उनका फर्ज था, उनको पुशअप किया कि थोड़ी देर और, थोड़ी देर और, थोड़ी देर और. उन्होंने कोशिश करी, लेकिन 17 घंटे और कुछ मिनटों के बाद में अल्टीमेटली शी गिव अप. जब वो बाहर आई, उनको निकाला गया, शी वाज डेवास्टेटेड टू फाइंड कि वो अपने लक्ष्य से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर थी. व्हाई डिड शी गिव अप? उन्होंने क्यों गिव अप किया? ठंड की वजह से नहीं, थकान की वजह से नहीं, वो 17 घंटे लड़ती रही. लेकिन जब भी वो बाहर देखती, बाहर उन्हें मौसम ऐसा था, धुंध दिखती, अपना लक्ष्य नहीं दिख रहा था, जमीन नहीं दिख रही थी, जिस वजह से उन्होंने गिव अप कर दिया.
बट शी वॉज अ वेरी ब्रेव वुमन, बहुत अमेजिंग लेडी थी। वो इससे ज्यादा निराश नहीं हुई, उन्होंने दोबारा इसको अटेम्प्ट करने का प्लान बनाया, बोला इस बार मैं जरूर कामयाब होंगी। सो उन्होंने एक फ्रेश डेट रखी और ज्यादा तैयारी करी और मेहनत करी अपने ऊपर, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली पूरा अपने ऊपर काम किया। एंड इस बार जब उन्होंने तैरना शुरू किया तो मौसम चेंज हो चुका था, गर्मी का मौसम आ चुका था। तो जब उन्होंने तब वो बाहर, जब भी वो गिव अप करती या थकान उन्हें महसूस होती, वो देखती दूर कई किलोमीटर दूर उन्हें नजर आता अपनी मंजिल यानी किनारा नजर आता। तो अल्टीमेटली इस बार वो 13 घंटे और कुछ मिनटों में अपने लक्ष्य को पूरा कर पाई। पहले 17 घंटे में भी नहीं हो पाया था, अब उन्होंने अपने टाइम को भी रिड्यूस किया एंड शी वाज सक्सेसफुल। शी बिकेम द फर्स्ट वुमन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल, दैट इज द सी बिटवीन द फ्रांस एंड द इंग्लैंड। नाउ पहले वो क्यों नहीं कर पाई थी और अब क्यों कर पाई? क्योंकि पहले जब भी वो बाहर देखती थी, उन्हें धुंध दिखती थी, जिसकी वजह से उन्हें लक्ष्य नहीं दिखता था एंड शी गिव अप। इस बार जब भी उन्हें थकान होती या उनका माइंड उन्हें कहता गिव अप करने के लिए, तो वो सिर्फ दूर किनारे को देखती और वो किनारा उन्हें कहता था कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, एंड शी बिकेम सक्सेसफुल। नंबर वन रीजन व्हाई पीपल गिव अप ऑन देयर गोल इज, एज आई सेड, गोल जो हैं उनके पहुंच से दूर हो जाते हैं, राइट? उनकी पहुंच से दूर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ऑटोमेटिकली उनकी नजरों से दूर होते हैं। अगर गोल को आप नजरों में रखोगे तो कभी भी वो आपकी पहुंच से दूर नहीं होंगे। सो जो भी आपका गोल है, आप प्राप्त करना चाहते होंगे, शायद 1 लाख रुपए महीना, शायद 2 लाख रुपए महीना, या जो भी, वो हर जगह आपको दिखना चाहिए। और इस समय सबसे बड़ा यंत्र जो हम उपयोग करते हैं, इस समय मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ कैसे? मेरे मोबाइल के ज़रिए। मैंने सामने मेरा मोबाइल रखा हुआ है, कैमरा स्टैंड पे लगाया हुआ है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप में से 90% लोग मेरे को मोबाइल से ही सुन रहे होंगे, राइट? 5 या 10% होंगे जो इस समय लैपटॉप का उपयोग कर रहे होंगे। क्योंकि आज मोबाइल नहीं है, आज मोबाइल में एक कंप्यूटर इनबिल्ट है, हमें बैंकिंग करनी होती है तो हम मोबाइल पे जाते हैं, टिकट बुक करनी है तो मोबाइल चाहिए। हर चीज़, हमारा हर काम तो इससे होता है, राइट? मेल चेक करनी है तो मोबाइल चाहिए, बीवी-पीवी चेक करनी है तो मोबाइल चाहिए, शॉपिंग करनी है तो मोबाइल चाहिए, कोई ट्रेनिंग किसी को भेजनी है, कोई इन्फॉर्मेशन देनी है, कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, हर चीज़ मोबाइल है। तो इसलिए मोबाइल में आपका स्क्रीन सेवर बहुत इम्पोर्टेंट है। वो होना चाहिए आपका गोल। जैसे कभी अगर आप मेरे से मिले, इस समय मेरे स्क्रीन सेवर को आप छेड़ें या देखें तो उसमें लिखा रहता है 2 करोड़ रुपए। सो आपको अपना लक्ष्य स्क्रीन सेवर पे लगाना है। स्क्रीन की बैक साइड पे लगाना है जो कि ट्रांसपेरेंट, जैसे जो लोग कवर यूज़ करते हैं तो ट्रांसपेरेंट करिए ताकि उस समय आप गोल लगा पाएँ। फैंसी कवर्स का ना उपयोग करें क्योंकि वो देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन अल्टीमेटली योर एवरीथिंग, आपकी हर चीज़, आपका हर एक गैजेट शुड सपोर्ट योर ड्रीम एंड शुड सपोर्ट योर गोल। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हर समय अपने लक्ष्य को अपनी नज़रों के सामने रखें ताकि बार-बार ऑटोमैटिकली आप उस पर फ़ोकस्ड रहें और ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में ज़रूर पहुँचे। एंड देन यू ऐसा जब आप करेंगे कंटीन्यूअसली, यू हैव टू बी इन योर ओन ज़ोन। जब भी आपको समय मिले, जो भी आप गाने सुने उसको अपने गोल से लिंक करें। राइट? आप में से बहुत से लोगों ने मेरा सक्सेस बाय चॉइस प्रोग्राम किया है। उसमें मैं आपको प्रैक्टिस करवाता हूँ कि अगर आप गाने सुन रहे हो फॉर एग्जांपल, क्योंकि तुम ही हो, तो उसमें बजाय किसी इंडिविजुअल को इमेजिन करने के या विजुअलाइज करने के, आप इमेजिन करिए अपने गोल को। अगर आप अपने गोल को बोलोगे, मेरा चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो, means you should love your goal, you should love what you want to achieve, and उससे आप इतना उसमें इन्वॉल्व हो जाओ, इतने आप इमोशंस, इतनी एनर्जी आप उसमें डालो that you and your goal becomes one, आप और आपके गोल एक हो जाए, राइट? जिस दिन आप और आपके गोल एक हो गए उस दिन सोते बैठते उठते जागते ऑल द टाइम आपके जहन में एक ही चीज रहेगी, फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए। मैं बहुत पहले एक इंटरव्यू पढ़ रहा था, द ग्रेट शोमैन ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री राज कपूर साहब का। उनसे किसी ने पूछा, साहब आपने इतनी कमाल की सक्सेसफुल मूवीज बनाई, इसका राज क्या है?
तो उन्होंने हंस के कहा, राज तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे एक ही चीज पता है, आई थिंक मूवीज, I dream movies. I sleep with my movies. I wake up with movies. I eat my movie. I drink with my movie. I mean, movies are my life. So, same way, आप जो अचीव करना चाहते हो, अगर आप उसमें को इतना अपने अंदर इन्वॉल्व कर लो, इतना आप उससे इमोशनली अटैच हो जाओ, that you and your goal, these two things becomes one like this, then you will be able to give a tremendous energy, the emotional energy to whatever you want to achieve. और जीवन में जो सारा जो गेम है वो इमोशंस का है, एनर्जी का है. एनर्जी इज इमोशंस इज व्हाट, इमोशंस इज नथिंग, एनर्जी इन मोशन इज इमोशन. लोग गलती क्या करते हैं, इमोशन किस चीज को देते हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे लोग नहीं जानते, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं बहुत छोटी जगह से आता हूँ, मुझे कोई हेल्प नहीं करता, मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता, nobody understands me, I am very alone, I am very frustrated. इन चीजों को एनर्जी देते हैं. They're putting the energy on the on the wrong thing. You need to energize your dream. You need to energize what you want to become. Love it like anything. You should be, I mean, you should be totally madly in love with your goal. आपको सिर्फ एक ही चीज दिखनी चाहिए, which is what you want to become, which is what your goal is. Remember the famous incident from the epic Mahabharata. महाभारत में पांडवों के जो गुरु थे, गुरु द्रोणाचार्य, उन्होंने धनुर्विद्या अर्थात धनुष बाण चलाना सिखाया पांचवों पांडवों को. उनका टेस्ट ले रहे थे और उस टेस्ट में उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक मछली रखी और उसके बाद कहा इसकी आंख पर निशाना लगाना है. सबसे पहले बड़े भैया युधिष्ठिर आए, उन्होंने पूछा आपको क्या दिख रहा है, बोले मेरे को मछली दिख रही है, पेड़ दिख रहा है, पीछे आसमान दिख रहा है. बोले क्या करूं, लोग कुछ मत करो, रहने दो. उसके बाद भी उनसे भी यही चीज पूछी, आपको क्या दिख रहा है. उन्होंने भी कहा कि मुझे मछली भी दिख रही है, आसपास सराउंडिंग्स दिख रही है, सो मेनी थिंग्स दिख रही है, और रहने दो. लास्ट में उन्होंने अर्जुन को बुलाया, अर्जुन से पूछा अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है. अर्जुन ने कहा गुरुदेव मुझे सिर्फ मछली की आंख दिख रही है. गुरुदेव ने सिर्फ अर्जुन को आज्ञा दी मछली की आंख पे निशाना लगाने के लिए, और क्योंकि सिर्फ उसे आंख दिखती थी, दिख रही थी, एग्जैक्टली उसका तीर वहीं जाके लगा. सेम वे, आपको क्या दिखता है, अगर आपको आपका लक्ष्य दिखता है, सुबह दोपहर शाम, उठते बैठते जागते सोते, ऑल यू हैव इन योर माइंड एक तानत ध्यानम, द वन एंड ओनली प्लेस जहां फोकस रखना है इज व्हाट यू वांट टू अचीव, दैट्स इट. उसके बाद किसी ने मुझे क्या कहा, किसी ने ना कहा, किसी ने टाइम देकर मिला नहीं, किसी ने मेरा मजाक उड़ाया, किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं करा, ये सारी बातें बेमानी हो जाती हैं, ये सारी बातें नेग्लिजिबल हो जाती हैं. यहाँ आपका ध्यान जाएगा ही नहीं. अगर आपका ध्यान इन चीजों पे जा रहा है, इट सिंपली मीन्स यू आर नॉट गिविंग योर 100% फोकस टू योर गोल, यू आर नॉट गिविंग 100% फोकस टू योर ड्रीम. आपके लिए सिर्फ एक ही चीज महत्व इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जो आपकी लाइफ को बदलेगी, जो कल को आपका नाम बनाएगी, जो कल को आपको सब कुछ देगी, आपका लक्ष्य. सारा फोकस, जिसे संस्कृत में कहते हैं, मैंने मेरे गुरु से सीखा, एक तानत ध्यानम, यानी 100% एक ही जगह फोकस. कहा, मुझे यहां पहुंचना है, मुझे एक्स ये अमाउंट पे पहुंचना है. आज से 5-6 साल पहले मैंने अपना गोल बनाया था, मुझे 1 करोड़ रुपए अर्न करने हैं. जब किसी ने सुना, मेनी पीपल लाफ्ड एट मी, बट इट डजंट मैटर. मुझे उनकी हंसी से ना कोई तब फर्क पड़ता था, ना आज फर्क पड़ता है. और मुझे किसी की गुड बुक्स में रहना ही नहीं है. मुझे किसी की गुड, आई डोंट वांट टू बी इन एनीबॉडीज गुड बुक्स. सो स्टॉप बिहेविंग और स्टॉप एक्सपेक्टिंग that you want to be in somebody else, in somebody's good books. No, that is not your goal. Success,
सो जब मैंने उन्हें कहा कि मैं 1 करोड़ रुपए कमाऊँगा, so many people laughed at me. They said, "You've gone mad, you're crazy, you're stupid." I said, "Thank you so much. You can feel whatever you want to feel. You can say whatever you want to say. For me, you don't exist, right? For me, आप exist ही नहीं करते और why should I listen to you?" The more they made fun out of me, it never disappointed me. It never discouraged me. Rather, it gave me more energy to be more and more focused. फिर मैंने अपना उसी तरीके से माइंडसेट बनाया कि ये कंपनी शुरू करी गई है मुझे 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम पर पहुंचाने के लिए। इसके जितने भी स्टाफ हैं ये मेरे लिए काम करते हैं। एंटायर मैनेजमेंट मेरे लिए काम करती है। ये सब दिन-रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं, डेडिकेशन से काम करते हैं, अच्छे प्रोडक्ट लाते हैं, अच्छा प्लान बनाते हैं, टाइम पर सर्विसेज देते हैं। सब कार्य क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूनिवर्स ने प्लान किया है मुझे 1 करोड़ रुपए पे ले जाने के लिए। ये मैंने अपने आप को एक बात समझाई। और जो भी होगा आज के बाद, वो सारे इंसिडेंट होंगे मुझे वहां पहुंचाने के लिए, ऐसा मैंने अपने आप को बोला और मैंने अपने ब्रेन को बार बार बोल के ये चीज कन्विंस करी। मुझे उस दौरान किसी ने कहा कि उसने काम छोड़ दिया। मैंने कहा थैंक यू सो मच, क्या पता काम करता बहुत टाइम वेस्ट करता, कोई और अच्छा आएगा, जल्दी 1 करोड़ पे पहुंचे। किसी ने कहा ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 करोड़ पे पहुंचना है। ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है तो बी प्रोडक्ट से पहुंच जाएंगे। उस दौरान किसी ने कहा कि ऐसा हो गया, या आज ये नहीं हुआ, या आज वो नहीं हुआ। मैंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पहुँचना है, वहाँ पहुँचेंगे। कोई हो नाउ डज़न्ट मैटर एट ऑल। एंड देन आई मेड माय माइंडसेट विद यू विदाउट यू। दिस इज़ वन ऑफ माय मंत्रास व्हिच आई बीन फॉलोइंग इट। ये मेरा वन ऑफ द एक मंत्र है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ सालों से, कि मुझे वहाँ पहुँचना है, आपके साथ या आपके बगैर। आप मेरे अच्छे डाउनलाइन हैं, अच्छे मित्र बन गए हैं इस यात्रा में। अच्छे पर्सन हैं। अगर आप इस यात्रा में मेरे साथ रहेंगे तो आप और मैं दोनों एक साथ कामयाब होंगे। और अगर कल को आप छोड़ देते हैं, आप इस बिज़नेस से बाहर चले जाते हैं, कोई और कंपनी में चले जाते हैं, तो प्रणाम आपको, मुझे आपसे कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, जो करो अच्छे से करो, बट आई विल बी सक्सेसफुल विदाउट यू। एंड इफ यू विल बी विद मी, देन आई विल बी सक्सेसफुल विद यू। द चॉइस इज योर्स। फैसला आपका है। ये फैसला आपने करना है। मैं अपने लिए फैसला ऑलरेडी कर चुका हूँ। और जब ये विचार आ जाता है, फिर आप विचलित होना बंद हो जाते हैं। ये आना था, नहीं आया, या ये आया, ये छोड़ के चला गया। लोगों का जीवन में मिलना, कुछ समय साथ रहना और उसके बाद छोड़ के चले जाना जीवन है। और यही नेटवर्किंग की भी नियति है। इस बिज़नेस में आपको लोग मिलेंगे। बहुत से लोग आपके साथ नहीं आएँगे, बहुत से लोग आपके साथ आएँगे, कुछ दूर तक चलेंगे, उसके बाद नहीं रहेंगे। कार्य करना बंद कर देंगे, अन्य कंपनी में चले जाएँगे, ऐसा होगा। उनके ऊपर बहुत एनर्जी मत लगाइए। जस्ट प्रे फॉर देम, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। एंड कंटिन्यू टू फोकस ऑन योर ड्रीम। एक तानत ध्यानम। एक ही चीज़ मैटर करनी चाहिए, दैट इज़ वेयर यू वांट टू बी, व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू वांट टू अचीव। डोंट डोंट गो फॉर एनी अदर थिंग। एक तानत ध्यानम, एक तानत फोकस। कहाँ? जो चीज अचीव कर, उसके बाद कुछ होता रहे, इट विल नॉट डिस्टर्ब यू। अगर आप एक तानत ध्यान में हो, एक ध्यान में हो, देन नथिंग कैन डिस्टर्ब यू। सो दैट इज द मंत्र आई वांट टू टीच यू टुडे। एंड इसे मैं कहता हूँ बी इन योर ओन जोन। अपनी एक अलग जोन में रहना, एक सफलता की जोन में रहना, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली। So totally ek tanat dhyanam, just focusing on one thing, that is your goal. Focusing on one thing, what do you want to become? Focusing on one thing, your success. Ultimately, बाकी कोई चीज मैटर करती ही नहीं है। Challenges will be there, challenges आएंगे जाएंगे। Challenges जीवन का एक हिस्सा होते हैं। एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है, उसके लिए बिल्कुल पैदा होता है, उसकी गर्दन भी बेचारे की सीधी नहीं रख सकता, गर्दन भी लुढ़की रहती है। उसके लिए गर्दन को सीधा रखना भी चैलेंज होता है। जब कुछ महीने होते हैं तब वो ये कार्य को कर सकता है।
बोल नहीं पाता, रो के बताता है भूख लगी है, सुसु आया है, सुसु निकल गया, पॉटी निकल गई, भैया डायपर चेंज कर दो, बोल नहीं सकता। क्या करता है? कुछ नहीं। उस समय उसके लिए चैलेंज होता है, यार कब बोलना सीखूं, कब इन्हें मेरी बात समझ में आए। कोई हम प्यार में आके उसे उछाल रहे होते हैं, उसे डर लग रहा होता है, वो डर के रो रहा होता है, हम फिर भी उसे उछालते जाते हैं। वो उस समय कहना चाहता है, अरे इडियट, मुझे उछालना बंद कर भाई, मुझे डर लग रहा है। लेकिन हम वो बोल नहीं सकता। उसका चैलेंज होता है, उसको बोलना नहीं आता। 2-3 साल बाद बोलना सीखता है, चलना नहीं आता, घुटने घुटना चलना नहीं आता, घुटना चलना सीखता है। फिर चैलेंज होता है, सीधा चलना सीखता है। तो आप देखो लाइफ में चैलेंजेस हमेशा थे, हैं और रहेंगे, सिर्फ उनका स्वरूप बदलता रहता है। द बेसिक लाइफ सेज कीप ऑन, कीप गोइंग, कीप गोइंग। अगर ये वो छोटे बच्चे के दिमाग में आ जाए, यार मेरी गर्दन ऐसी रहती है, मेरी कभी ऐसी नहीं होगी, तो व्हाट नेचर उसको क्या सिखाती है? कीप गोइंग, थोड़े समय बाद होगा। बोलना नहीं आता, नेचर क्या सिखाती है? आ ऊ ई रा रू उआ उआ करता रहे, बोलना आएगा। प्रयास करते रहो, निरंतर बी कंटिन्यूअस, कंसिस्टेंटली अपने काम पे फोकस करते रहो। सो आज जो लाइफ में चैलेंजेस हैं, नेटवर्किंग में चैलेंजेस हैं, बिजनेस में चैलेंजेस हैं, जो भी चैलेंजेस हैं, आज हैं कल नहीं होंगे। आपने हमेशा रहना है, अर्थात यू जस्ट बी फोकस्ड, एक तानत ध्यानम के साथ में अपने गोल के ऊपर में। एंड दैट इज, आई से, बीइंग इन योर ओन जोन, अपनी जोन में रहना, अपनी सक्सेस की जोन में रहना। एक किस्सा याद आता है, मजनू को एक ही धुन लगी रहती थी, लैला से मिलना है, लैला से मिलना है। तो वो गर्मी पड़ रही थी, रेत पे नंगे पैर चले जा रहा था, उसको एक ही धुन थी, मुझे लैला से मिलना है। ना उसे गर्मी लग रही थी, ना भूख लग रही थी, ना पसीने सता रहे थे, ना उसे गर्म रेत भी पैर नहीं जला रही थी। उसे एक ताना ध्यान था, मुझे लैला से मिलना है। सामने गुजरा एक व्यक्ति नमाज पढ़ रहा था, उसके ज्यादा पास से निकल गया, वो डिस्टर्ब हो गया। उसने कहा, ए इधर आ। उसकी आवाज गई नहीं, दोबारा बुला रहे, तुझे बुला रहा हूँ। बोला जी 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 साहब। बोला तुझे तमीज नहीं? बोला साहब क्या हुआ? बोला तुझे दिख नहीं रहा है, मैं खुदा की इबादत कर रहा हूँ, मेरे सामने जा रहा, मैं डिस्टर्ब हो गया। बोला साहब मैं माफी चाहूंगा, मेरा आपको डिस्टर्ब करने का, परेशान करने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन मुझे आप दिखे नहीं। बोला तू अंधा है क्या, पागल है, तुझे इतना बड़ा मैं नहीं दिखा? बोला साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे आप नहीं दिखे। बोला तू कैसे नहीं दिखा? बोला साहब मैं लैला से मिलने जा रहा हूँ, मुझे हर समय हर जगह लैला की सूरत दिख रही है, और मुझे और कुछ नहीं दिख रहा, तो इसलिए मैं आपको देख नहीं पाया, माफी चाहूंगा। बोला लैला कौन है? बोला जी मैं, मेरी प्रेमिका है, उससे बहुत इश्क करता हूँ, बहुत मोहब्बत करता हूँ, मुझे वही दिखती है, मैं तो उसी के पास जा रहा हूँ। बस ना मुझे भूख लगती है, ना मुझे प्यास लगती है, मैं उसी के पास जा रहा हूँ। बोला चल भाग यहाँ से, पागल है कोई। वो जाने लगा। तब उसके ज़हन में, मजनू के दिमाग में बात आई, वापस आया। बोला साहब आपसे एक बात पूछूं? बोले जी। बोले जी मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं तो सिर्फ लैला के पास जा रहा हूँ और मुझे लैला के अलावा कुछ दिख नहीं रहा। आप तो खुदा की इबादत कर रहे थे। बोला हाँ। बोला तो आप मेरे से कैसे डिस्टर्ब हो गए? मैं तो टकराया भी नहीं आपसे, मैं तो सिर्फ आपके पास से गुजरा, और आपकी तो आंख बंद थी, मुझे तो खुली आंख से सिर्फ लैला दिखती है। तो आप किस खुदा की इबादत कर रहे थे? आप कैसी इबादत कर रहे थे? उसे आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ। कहने का मतलब क्या है? एक ही धुन, एक तानत ध्यानम, व्हाटएवर यू वांट टू अचीव, आई डोंट नो, could be 1 lakh rupees, could be 2 lakh rupees, and start moderately. अभी अगर आप नए हैं, इमीडिएटली 1 करोड़ रुपए के लिए मत सोचो, इमीडिएटली 50 लाख रुपए के लिए मत सोचो, छोटी इनकम के लिए सोचो, 50,000 के लिए सोचो, 1 लाख रुपए के लिए सोचो, वहां फोकस करो, वहां पहुंचो, तब जा करके उसको आप बढ़ाओ। सो दैट इज व्हाट यू नीड टू बी। सो रिमेंबर, एक ही चीज, एक तानत ध्यानम, एक ही जगह ध्यान, कंटिन्यूअसली अगेन एंड अगेन। बीच में कुछ डिस्टरबेंसेस होंगी, लोग आएंगे जाएंगे, काफी चीजें होंगी, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बट क्या चीज आपको हेल्प करेगी बार बार वहां पर रहने के लिए? इस आपका एक तानत ध्यानम। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। देन वंस एक बार आपको ये चीज क्लियर हो गई, उसके बाद एक चीज जो आपने समझनी है, लाइफ में ना कोई भी फ्री लंच नहीं होते। लाइफ चलती है गिव एंड टेक के ऊपर में। आप कुछ भी बन सकते हो, कुछ भी हासिल कर सकते हो,
बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ गिव एंड टेक। आप कुछ दोगे तो आपको मिलेगा। नाउ व्हाट यू नीड टू गिव, यू नीड टू गिव सबसे पहले अपने गोल को बहुत ज्यादा मेंटल अटेंशन। उसके बाद आपको ये चीज समझनी है कि ये मेरा लक्ष्य है, मेरा जीवन है, मैं ही इसको अचीव करूंगा। डोंट एक्सपेक्ट कि कहीं से कोई आएगा और वो आपको करा देगा। नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू वर्क फॉर इट। और कार्य करने के लिए पहले आपको काम सीखना पड़ेगा। तो इस बिजनेस में आप नए हैं, आप क्या सीखना पड़ेगा? प्रोडक्ट्स की कैसे, क्या प्रोडक्ट हैं, कैसे काम करते हैं, क्या है वो सीखना पड़ेगा, उन्हें यूज करना है वो करिए। फिर नेटवर्किंग कैसे करनी है, उसके बेसिक स्टेप्स हैं जो आपके लीडर्स आपको दिन रात बताते होंगे, वो आपको सीखने हैं। सो बेसिक चीजें फॉलो करिए। एग्जाम्पल लिस्ट बनाना, कॉलिंग करना, प्लान शो करना, करवाना शुरू में, करना थोड़े टाइम बाद। और जितनी जल्दी हो सके इंडिपेंडेंट होना सीखिए। इंडिपेंडेंट होना मतलब स्वयं प्लान दिखाना सीखिए। मैं मेरे अपलाइन सपोज कितने भी महान और अच्छे क्यों ना हो, मैं अगर उनसे समय लूंगा वो हफ्ते में 1 या 2 दिन मुझे समय दे पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 3-4 प्लान मेरे लिए दिखा देंगे। लेकिन अगर मैं स्वयं प्लान दिखाना सीख गया तो मैं डेली 3-4 प्लान दिखा सकता हूँ। क्या चीज ज्यादा काम करेगी, हफ्ते के 3-4 प्लान या डेली के 3-4 प्लान? ऑफ कोर्स डेली के 3-4 प्लान ज्यादा काम करेंगे। ये नंबर्स गेम है। सो जितनी जल्दी हो सके इंडिपेंडेंट होइए। ऑब्जर्व करिए जब आपके कोई अपलाइन लीडर प्लान दिखाते हैं, वो कैसे प्लान दिखा रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करिए, उनसे सीखिए, उसे डुप्लीकेट करिए, उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू करिए। ये इस बिजनेस में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। फोकस करिए 6 एक्टिव लाइन हो आपकी, 6 एक्टिव लाइन, राइट, विड्थ में, उनको डेप्थ में लेके जाना है। एक्टिव लाइन कौन सी? जिस आपकी लाइन में 3 से 4 लोग अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कार्य करते हों, उसे मैं कहता हूँ एक्टिव लाइन। सो मेक श्योर कि ऐसा हो जिसमें 3 से 4 लोग कम से कम अपने ड्रीम को चेज़ कर रहे हो, फॉलो कर रहे हैं। वो लाइन एक्टिव लाइन है। हो सकता है आपकी कोई लाइन हो जिसमें सिर्फ कंज्यूमर्स हों, वो 2-4 हज़ार पीवी कर देती है, लेकिन वो एक्टिव लाइन नहीं है। लेकिन हो सकता है आपकी कोई लाइन 1.5-2 हज़ार पीवी करती हो, लेकिन उसमें 3 से 4 लोग सीरियस हैं अपने लाइफ को चेंज करने के लिए, अपने लाइफ को बदलने के लिए। वो एक्टिव लाइन है, क्योंकि उसको आप आगे चल के भविष्य में 1-1.5 हज़ार पीवी से 1-1.5 लाख पीवी तक लेके जा सकते हो। लेकिन जो सिर्फ कंज्यूमर्स का नेटवर्क है, उसमें आप आज की 2-3-4 हज़ार पीवी को 2-3 लाख पीवी में कन्वर्ट नहीं कर पाएँगे। सो दैट इज़ व्हाट यू शुड फोकस ऑन टू। आपकी टीम में मैक्सिमम लोग अपने ड्रीम, कितने लोगों के ड्रीम है, कितने लोग अपने ड्रीम को चेज़ करने के लिए, पूरा करने के लिए कमिटेड हैं, राइट? सो ये आपने एंश्योर करना है। डोंट लुक एट योर पीपल एज़ ओनली पीवी प्रोड्यूसिंग मशीन्स। अपने लोगों को सिर्फ एक पीवी पैदा करने वाली मशीन के तौर पर ना देखें। दे आर ह्यूमन बीइंग टू। जैसे आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं, वो भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्हें भी बताइए, समझाइए, बातचीत करिए कि ये बिज़नेस और बाहर से हमें दिखता है प्रोडक्ट का, लोगों को जोड़ने का, मीटिंग में जाने का, ये सब इस बिज़नेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन अल्टीमेटली ये बिज़नेस है अपने सपने पूरे करने का और अपने लोगों के सपनों को पूरा करवाने का, उन्हें रास्ता दिखाने का। दैट इज़ व्हाट दिस बिज़नेस इज़ अल्टीमेटली अबाउट। सो आपके लोगों के ड्रीम्स हों, वो अपने ड्रीम्स को चेज़ करें। सो जब ऐसी एक टीम बननी शुरू होती है तो दैट ये एक ऐसी टीम है जो एक स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी, एक सशक्त टीम बनेगी। हमेशा याद रखिए, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अपलाइंस, मुझे पता है, रेगुलरली आप लोगों को टीच करते हैं, ट्रेन करते हैं, आपकी टीम में एजुकेशन बहुत अच्छी है। उसे कंटिन्यूअसली फॉलो करिए, कंटिन्यूअसली अपडेट रहिए, अपनी टीम को उससे जोड़िए, क्योंकि आपकी टीम जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और जितनी एजुकेटेड होगी और फिर काम करेगी तो उतनी स्ट्रॉन्ग बनेगी। स्ट्रॉन्ग टीम ही बड़े वॉल्यूम बिल्ड करेगी और बड़े वॉल्यूम से ही आपको बड़ा पैसा आना है। ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद कुछ चीजें आपने और समझनी है। वो क्या है कि कोई भी नेगेटिव चीज मेरे अंदर नहीं जाएगी। कोई भी नेगेटिव बोले उसको सुनना नहीं है। कोई भी नेगेटिव चीज देखनी नहीं है। आज की डेट में सोशल मीडिया का जमाना है। फेसबुक पे, यूट्यूब पे हजारों वीडियोस हैं। बहुत से वीडियोस आपको इंस्पायर करेंगे, लेकिन बहुत से नेगेटिव वीडियोस भी होते हैं। सो उनसे आपको दूर रहना है।
सो एक प्रण आपको करना है, नथिंग नेगेटिव विल गो इनसाइड मी। कोई भी नकारात्मक विचार, नकारात्मक बात, नकारात्मक सोच, नकारात्मक विचार मेरे अंदर नहीं जाएगा। ये आपने एक प्रण करना है। सो देन एंड ओनली देन यू कैन remain in your own zone or a success zone. Talk less to more and more people. ज्यादा बात करिए, ज्यादा बात आपको एक दो व्यक्ति से नहीं करनी, आपको कम बात करनी है ज्यादा लोगों से, चाहे वो प्रोस्पेक्ट है, डाउनलाइंस हैं, राइट। कई लोगों में देखता हूँ आधा आधा घंटा फोन पे बात करते रहते हैं एक ही आदमी से। यू आर किलिंग योर टाइम, डोंट डू दैट। सो टॉक लेस टू मोर पीपल। देन आपका लक्ष्य होना चाहिए, मेरी कितनी लाइन से एलओबी आती, मुझे एलओबी हमारे प्लान का मेन इनकम है। सो कितनी लाइन से आपको एलओबी आती है, अगर अभी नहीं आती किसी भी लाइन से कोई बात नहीं, लक्ष्य बनाइए कि मैं एक लाइन से एलओबी लूंगा अभी इस महीने, या उसके बाद 2 लाइन से, 3 लाइन से। जब आप एलओबी लेने लगे, दूसरा आपने लक्ष्य बनाना है, मेरी टीम में कितने लोग एलओबी की इनकम लेते हैं, क्योंकि एलओबी की इनकम, जैसे मैंने आपको कहा, हमारे प्लान की एक महत्वपूर्ण इनकम है। आपकी टीम में जितने लोग एलओबी ले की इनकम लेंगे, उनका पेचेक अच्छा होगा, आपका पेचेक ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। सो हाउ मेनी पीपल आर टेकिंग एलओबी, ये आपका अगला लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि याद रखिए कोई भी व्यक्ति आपको कमा के देने के लिए इस बिजनेस में नहीं आया। ऑल ऑफ देम आर वर्किंग फॉर देयर ओन इनकम, ऑल ऑफ देम वर्किंग फॉर देयर ओन गोल्स। दैट्स हाउ इट वर्क्स एंड दैट्स हाउ इट शुड बी, दैट इज हाउ एक्चुअली इट इज। सो आपकी टीम में कितने लोग एलओबी ले रहे हैं, ये आज देखिए। आज कोई नहीं है, कोई बात नहीं, लक्ष्य रखिए आने वाले 3 महीने में मेरी टीम में 5 लोग एलओबी लेंगे या 3 लोग एलओबी लेंगे। उसके बाद उस नंबर को बढ़ाते जाइए। मेक पीपल अर्न मनी। यू शुड फोकस ऑन अर्निंग मनी एंड देन यू शुड फोकस ऑन स्टेज 2, मेक पीपल अर्न मनी। आपकी टीम में लोग पैसे कमाएं। एंड डोंट थिंक एंड वरी अबाउट थिंग्स यू कांट कंट्रोल। उन चीजों के बारे में चिंता मत करिए जिन चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। अभी कोविड आया आया आया, फाइन, आई मीन उसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। मतलब उसके बारे में चिंता क्या करनी है। हाँ, हम ये कर सकते हैं, हम उससे, मैंने जब कोविड आया था, आप में से कई कई लोग मेरे जो रेगुलर वेबिनार सुन रहे हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था, डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी खत्म नहीं हुआ, नथिंग। एंड आप इसी पीरियड में देखो कितने लोगों ने अपने हाईएस्ट चेक लिए। जयदीप आपने अपना हाईएस्ट चेक लिया, सयंतन ने शायद अपना हाईएस्ट चेक लिया। ऐसे बहुत से लोग हैं, राइट, जिन्होंने फोकस सही जगह पर करा। दे आर कंटिन्यूअसली ग्रोइंग। Consume products regularly, right? Make people consume product in your team, and always continuously there will be, जैसे आप रोज खाना खाते हैं, कभी खाना आपको बहुत टेस्टी लगता है, बड़ा आनंद आता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे फेवरेट चीज नहीं बनी होती, या वो चीज बनी होती जो हमें पसंद नहीं है। तो उस दिन हम क्या करते हैं, हम, पेट तो भरना है ना, हम खाना खाते हैं, थोड़ा सा कम खा लेते हैं। और जिस दिन कोई फेवरेट चीज मिली होती है, उस दिन हम थोड़ा भूख से ज्यादा खा लेते हैं। उस दिन कहते हैं मजा आ गया। सेम वे जब आप रोज काम करने निकलोगे, कभी कभी कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे, उस दिन वही वही होगा, मजा आ गया। लेकिन कभी कभी ऐसे दिन होंगे जब आपको अच्छे लोग नहीं मिले, अच्छी मीटिंग्स नहीं हुई, या कुछ अच्छा नहीं हुआ, कोई बात नहीं। उस दिन जस्ट वेट फॉर अनदर डे। हर रात के बाद सुबह आती है, एंड एवरी मॉर्निंग इज एन अपॉर्चुनिटी, एवरी न्यू डे इज एन अपॉर्चुनिटी। सो कंटिन्यूअसली वर्क करते रहिए। आई मीन डोंट गेट अपसेट बाय दीज थिंग्स। चैलेंजेस हमेशा से थे, जैसे मैंने कहा, है और रहेंगे। एंड हाउ टू ओवरकम चैलेंजेस, द ओवरकमिंग चैलेंज का एक ही तरीका है, अपने को बैकअप करना। नेवर स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ। कंटिन्यूअसली अपने को बैकअप करते रहिए। बैकअप करना मीन्स, राइट, आई विल डू इट, आई विल डू इट। और जब एक ताना ध्यानम अपने गोल पे रहेगा, तो ये और भी इजी हो जाता है। सो कंटिन्यूअसली खुद को बैकअप करना, राइट। बिलीविंग इन योरसेल्फ मीन्स लगातार अपने से बात करते रहना कि यस, आई विल डू इट, आई विल डू इट, आई विल बिकम सक्सेसफुल। और हैविंग द कंटिन्यूअस, वो मंत्र जो मैं बोलता हूँ, 1 लाख 1 लाख 1 लाख, उसके उसी जोन में रहना। सो वो आप रहेंगे तो चैलेंजेस को आप ओवरकम कर पाएंगे। दे विल नॉट बी एबल टू डिस्टर्ब यू, राइट। सो कीप गोइंग, कीप गोइंग। इट इज, life is not a 50-meter race or a 100-meter race. It is a marathon.
So you need to keep going. You need to keep going. कभी कभी क्या होता है, हम एक जर्नी पे जा रहे होते हैं, हमें एहसास होता है हमने गलत रोड ले ली, तो हम क्या करते हैं, उस पर कंटिन्यूअसली ड्राइव नहीं करते, हम वापस आ जाते हैं, यू टर्न ले लेते हैं। सेम वे लाइफ है। इस जीवन में हमसे सभी से बहुत सारी गलतियां हुई हैं और आगे भी हो जाएंगी, जाने अनजाने। whenever you the thing is keep going, keep doing, right? If today many of you, if you call me a legend or very successful, you know why? Because मैं 1998 में इस इंडस्ट्री में आया था, और आप देखो मुझे 22 साल पूरे हो चुके। आई एम इनटू माय 23rd ईयर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, राइट? ऐसा नहीं है कि चैलेंजेस मेरे सामने नहीं आए, ऐसा नहीं है कि मुश्किल समय मेरे पास नहीं आया, सब आया, बट आई kept on going, and that is the secret of anything. Just keep going, keep going, right? मुझे एक ज्ञानी व्यक्ति की बात याद आती है। एक बहुत ज्ञानी व्यक्ति से पूछा कि गुरुजी, ऐसी कोई बात बताओ कि जो मुश्किल समय में हूं, बहुत मुश्किल समय में हूं, तो मुझे हौसला दे आगे बढ़ने का, और अगर मैं सक्सेसफुल हूं तो मैं ग्राउंडेड रहूं, मैं बहुत ज्यादा घमंड मेरे अंदर ना आए, और मैं लेवल रहूं, हम्बल रहूं। तो ऐसी कोई बात मुझे बताओ। तो गुरुजी ने एक ही बात बोली कि ये जो समय है ये बीत जाएगा, ये परमानेंट नहीं है। सो आज अगर आपके कठिन समय है, संघर्ष का समय है, चैलेंजेस का समय है, आज जेब में पैसे नहीं, बीवी पीवी कम है, नेटवर्क कम है, 500 चैलेंजेस है लाइफ में, डोंट वरी, ये समय परमानेंट नहीं है, ये बीत जाएगा। जस्ट कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग। एंड अगर आप आज टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हैं, शायद मेरी तरह, तो आई ऑल्सो नो दिस दैट ये भी परमानेंट नहीं है, ये समय भी बीतेगा। So that it will help you to be grounded, and it will help you to be humble, and it will help you to realize that continuously keep doing your karmas or keep doing your duties, and always push yourself, push yourself. आपका कंपटीशन किसी से नहीं है, आपका कंपटीशन स्वयं से है, खुद से होता है हमेशा। आज के दिन का पर्पस क्या है कि अगर मैं आज के दिन की मीटिंग करूं तो मैं कल से बेहतर मीटिंग करूं, चाहे मैं 1% बेहतर करूं। आज इस महीने का जो मेरा पेचेक है वो पिछले महीने से बेहतर आया, यही तो सक्सेस है। सो सेम एटीट्यूड रखना। आज अगर मैं प्लान दिखाऊं तो कल से बेहतर दिखाऊं। आज अगर मैं कोई प्रोडक्ट ट्रेनिंग करूं, आज अगर मैं कोई ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूं तो मैं कल से ज्यादा अटेंटिवली होकर के अटेंड करूं। आज अगर मैं कोई कोई भी काम कर रहा हूं तो मैं कल से चाहे 0.1% बेटर करूं, पर मैं बेटर करने का एक निर्णय माइंड में डालूं। सो दिस थिंग, कंटिन्यूस ग्रोथ का माइंडसेट, अनेकता न ध्यानम जब आप रखेंगे और ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो ऑटोमेटिकली यू विल बी ऑन द राइट पाथ। एंड इट इज ऑल अबाउट डूइंग इट, इट इज नॉट अबाउट लिसनिंग, इट इज अबाउट डूइंग। एंड डूइंग कैन नॉट हैपन इन अ डे। डूइंग जो है वो एक दिन में नहीं हो सकती, ये एक निरंतर प्रयास है। क्यों 24 घंटे का एक दिन बनाया भगवान ने? क्यों रात बनाई? ताकि दिन भर में जो हमने काम किया हम सो सकें, और अगले दिन क्यों सुबह होती है? ताकि हम जब उठे तो हम फ्रेश उठे और एक नई शुरुआत करने का मौका वो हमें देता है। सेम वे, कंटिन्यूस फोकस, एक ताना ध्यानम ऑन योर गोल, एंड कंटिन्यू टू वर्क एवरी डे, डे इन एंड डे आउट, डे इन एंड डे आउट, कंटिन्यूसली फोकसिंग ऑन योर गोल, कंटिन्यूसली खुद को इंप्रूव करना, एंड कीप गोइंग, कीप वर्किंग। There's a very famous saying, Rome was not built in a day. रोम एक दिन में नहीं बना था, ताजमहल एक दिन में नहीं बना था, 16 साल से ज्यादा का समय लगा था। वेस्टिज भी एक दिन में नहीं बनी थी। 2004 में जब आई थी सब लोग हंसते थे, कोई वेस्टेज कहता था, ये बकवास है, बेकार है, अरे अभी बंद हो जाएगी। आज हम 2020 में 16 साल लगे इस मुकाम पे पहुंचने के लिए। सेम वे, जब मैं इस बिजनेस में आया था बहुत से लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, आज आपका उड़ाते हो। बट नथिंग हैपेंस इन अ डे, बट इफ यू कीप ऑन doing what you do,
1 day, 2 day, keep on going, keep on repeating, तो कंसिस्टेंसी में बहुत बड़ी ताकत होती है और परसिस्टेंसी में उससे भी बड़ी ताकत होती है. So don't expect miracle. Miracle do happen in life, but miracle don't do happen in a day. Miracle एक दिन में नहीं होगा, चमत्कार एक दिन में नहीं होगा. चमत्कार को समय दीजिए होने के लिए एंड तब तक रेगुलरली कंटिन्यूसली फोकस एक ताना ध्यानम अपने लक्ष्य पे रखिए. जो सिस्टम बताता है उसको फॉलो करते रहिए. कुछ दिन अच्छे बीतेंगे, कुछ दिन नहीं बीतेंगे, कुछ महीना बढ़िया जाएगा, कुछ महीना उतना बढ़िया नहीं जाएगा. इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट है कंटिन्यूसली वर्कअप करना, बी कंसिस्टेंट रहना. दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड बी टोटली फोकस्ड ऑन व्हाटएवर यू वांट टू अचीव. सो मैं आज इतना ही आपसे बात करना चाहूंगा. I don't want to drag it on and on and on, because if you just start following this itself is enough to put you on the track of greatness. So I wish you all the best. I wish you wealth. And जयदीप, यहाँ मैं आपसे और सभी लोगों से इजाजत लेना चाहूंगा. सर थैंक यू सो मच सर. अगेन आपका ट्रेनिंग सुनने के बाद अगेन इट मींस मेरा एक नया शुरुआत. आई फील सो मच फ्रेश क्योंकि आज मैं पूरे दिन हॉस्पिटल में था. एक्चुअली क्या इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल राइट नाउ. सो मैं आया एंड नाउ इट गिव्स वन मोस्ट ऑफ द एनर्जी. मतलब अभी मैं एनर्जी भी मतलब मुझे भी क्या हो रहा है मैं आपको बता नहीं पाऊंगा सर. थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल. जो सिंपल था बहुत कुछ सीखने को मिलता है. इसलिए मैं बोलता हूँ आई डोंट लव योर पेचेक. मतलब आपका पेचेक मैं लव नहीं करता हूँ, मैं इंस्पायर होता हूँ उस पेचेक से, लेकिन आई लव योर एजुकेशन सर. थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग एंड थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग एंड ज्वाइनिंग विद अस. थैंक यू एंड आई विल बी शॉर्टली अपलोडिंग दिस वीडियो इन द यूट्यूब. थैंक यू सो मच सर फॉर एवरीथिंग एंड ब्लेस अस ऑलवेज. थैंक यू सो मच सर. Thank you.